For a nation of 1.4 billion to reach its net zero emissions target by 2070, it must secure a massive, continuous supply of clean electricity. However, the country faces a significant geographic constraint. While global uranium reserves power most nuclear plants, India holds only 1 to 2% of that supply. These are the monazite sands of Kerala. They represent a massive, untapped energy reserve. These specific coastal deposits contain 25% of the entire world's thorium. But thorium presents a technical obstacle. It is fertile, but not fissile. As this simulation shows, it can absorb incoming neutrons, but it refuses to split and release energy on its own. Thorium acts like a high-performance engine without a starter motor. To utilize it, scientists had to design a system that could push-start a self-sustaining atomic chain reaction. This is Dr. Homi J. Bhabha. 70 years ago, he formulated a long-term strategy to overcome the country's lack of uranium. His three-stage nuclear power program is designed sequentially. Each phase is engineered to produce the specific fuel required to power the next. This is a multi-generational engineering strategy. Each stage is required to manufacture the fuel and conditions necessary to activate the following phase. In Stage 1, pressurized heavy water reactors burn natural uranium to generate electricity for the grid. This diagram shows the critical byproduct of that process. The spent uranium fuel yields plutonium-239, which is the input required for the second stage. This is the Kalpakkam nuclear complex. This facility houses the prototype fast breeder reactor, marking the transition into the second stage of the roadmap. Other major powers, including France and the US, abandoned their billion-dollar attempts to master this specific breeder technology due to its extreme complexity. In April 2026, the Kalpakkam reactor achieved criticality. This is the point where a sustained and controlled nuclear fission chain reaction officially begins. Fast breeder reactors operate on a unique principle. By using high-energy neutrons, the reactor actually produces more fissile fuel than it consumes. By reaching criticality at Kalpakkam, scientists have successfully operated a machine that defeated the efforts of much larger nuclear programs. To maintain the high-speed neutrons required for this reaction, engineers cannot use water as a coolant. Instead, they use liquid sodium. Liquid sodium is highly volatile and reacts explosively with air or water. Containing it requires double-walled, hyper-secure piping systems that must remain perfectly sealed. This cross-section shows the core surrounded by a blanket of fertile material. This outer ring is continuously bombarded by fast neutrons from the center. When thorium is placed in this blanket, the neutrons transmute it into uranium-233. This transmutation process is the final prerequisite for the system. Stage 2 serves as the bridge designed to manufacture the fuel for the third and final stage. तो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का उदाहरण लेते हैं, मतलब अमेरिका, फ्रांस या फिर जापान जैसे देश। हाँ, इन देशों ने तो इस क्षेत्र में बहुत पैसा बहाया है। एग्जैक्टली इन सभी देशों ने एक खास न्यूक्लियर तकनीक पर 50 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा खर्च कर दिए हैं, दशकों तक रिसर्च की और अंततः हार मान ली। क्योंकि उनके वैज्ञानिकों का सीधा सा निष्कर्ष था कि ये तकनीक इतनी मुश्किल है कि इसे सुरक्षित तरीके से संभालना लगभग मतलब नामुमकिन ही है। बिल्कुल, लेकिन देखिए ये कितनी हैरानी की बात है कि उसी तकनीक को $1 बिलियन से भी कम खर्चे में और पूरी तरह से स्वदेशी बलबूते पर भारत ने सच कर दिखाया है। सही कहा। कलपक्कम में 6 अप्रैल 2026 को मिली ये जो वैज्ञानिक सफलता है, ये सिर्फ एक साधारण खबर नहीं है। हाँ, ये तो एक काले पत्थर की खोज से शुरू हुई उस लंबी यात्रा का परिणाम है जिसने ऊर्जा के क्षेत्र में मतलब पूरी दुनिया को ही चौंका दिया है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जिनमें पीआईबी की प्रेस रिलीज है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की जो वैज्ञानिक रिपोर्ट्स शामिल हैं, वो इसी सफर को विस्तार से बताती हैं। हाँ, तो इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही है कि भारत के इस 3 स्टेज मतलब जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है ना, उसके ऐतिहासिक और रणनीतिक सफर को समझा जाए। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। मैं तो कहूंगी कि ये एक ऐसी कहानी है जो विज्ञान के साथ साथ
कूटनीति, भू राजनीति और एक राष्ट्र के असीम धैर्य को दर्शाती है। मतलब ये हाँ, इन सभी वैज्ञानिक रिपोर्ट्स को एक साथ रखकर देखने पर जो तस्वीर उभरती है वो केवल बिजली पैदा करने वाले कारखानों की नहीं है। तो फिर किसकी है? ये कहानी है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के बावजूद एक देश ने अपनी ऊर्जा आजादी का रास्ता खुद गढ़ा। बिल्कुल। और इस पूरी यात्रा की गहराई में जाने से पहले मुझे लगता है कि उस मूल तत्व को समझना बहुत जरूरी है जिसने इस परमाणु विज्ञान की नींव रखी। हाँ, यूरेनियम की बात करें आप। एग्जैक्टली। मतलब एक साधारण सा दिखने वाला काला पत्थर दुनिया का सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत कैसे बन गया। जब हम स्रोतों में 1789 के जर्मन केमिस्ट मार्टिन क्लैपरोथ का जिक्र देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने पिच ब्लेंड नाम के काले पत्थर से यूरेनियम की खोज की थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है ना कि करीब 1 सदी तक दुनिया को इसका असली इस्तेमाल ही नहीं पता था। अच्छा, तो वो लोग इसका करते क्या थे? दशकों तक यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ कांच के बर्तनों को एक खास हरा पीला रंग देने के लिए किया जाता था। मतलब किसी को अंदाजा ही नहीं था कि इस धातु के अंदर क्या छिपा है। ओह, बस रंग के लिए? ये तो अजीब है। हाँ ना। कहानी में असली मोड़ तो 1896 में आता है जब हेनरी बेकेरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की, और वो भी एक दुर्घटना के तौर पर। अरे हाँ, वो फोटोग्राफिक प्लेट वाला हादसा। बिल्कुल। उन्होंने यूरेनियम को एक फोटोग्राफिक प्लेट के साथ अंधेरे दराज में रख दिया था, और जब उन्होंने प्लेट को देखा तो उस पर गहरे निशान थे। तो मतलब यूरेनियम बिना किसी बाहरी रोशनी के अपने अंदर से ऊर्जा निकाल रहा था। एग्जैक्टली। इसका सीधा सा मतलब था कि वो अपने भीतर से एक अदृश्य ऊर्जा यानी रेडिएशन छोड़ रहा था। बाद में मैरी क्यूरी के काम ने इस पर से और पर्दा उठाया। और शायद इसी बिंदु पर ना भौतिकी का वो सबसे मशहूर सिद्धांत जुड़ता है। मैं सोच रहा था उस बारे में जब 1930 के दशक के अंत में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हान और लीस माइटनर ने यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बारिश की तो एक अजीब घटना हुई। हाँ, वो प्रयोग जिसने पूरी केमिस्ट्री पलट कर रख दी। एकदम। यूरेनियम का परमाणु टूट गया, लेकिन टूटे हुए हिस्सों का कुल वजन असली यूरेनियम से कम था। मतलब गायब हुआ द्रव्यमान कहाँ गया? भौतिकी का नियम तो कहता है कि कुछ भी पूरी तरह मिटता नहीं है। यही एल्बर्ट आइंस्टाइन के E0 = mc² का सिद्धांत सिद्ध होता है, जहां वो गायब द्रव्यमान असीमित ऊर्जा में बदल गया। एकदम सही। और इसी प्रक्रिया को न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। एक परमाणु के टूटने से ऊर्जा के साथ साथ कुछ और न्यूट्रॉन निकलते हैं जो आसपास के दूसरे यूरेनियम परमाणुओं को तोड़ते हैं। और फिर ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। बिल्कुल। तो क्योंकि हम E=mc² से पैदा होने वाली इस ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो एक स्वाभाविक दुविधा पैदा होती है। मतलब यही ऊर्जा एक शहर को रोशन भी करती है और हिरोशिमा जैसे शहर को पल भर में तबाह भी कर सकती है। हाँ, वो एक बहुत ही भयानक पहलू है इसका। तो इस चेन रिएक्शन को शांतिपूर्ण या विनाशकारी बनाने के बीच की वो बारीक रेखा क्या है? मतलब अक्सर न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर बम दोनों में यूरेनियम का ही नाम आता है। वो बारीक रेखा असल में एनरिचमेंट और चेन रिएक्शन की गति पर निर्भर करती है। अगर हम प्राकृतिक यूरेनियम को देखें ना, तो उसमें यूरेनियम 235 सिर्फ 0.7% होता है। अच्छा, सिर्फ 0.7%। हाँ, और यही वो हिस्सा है जो आसानी से टूटता है, मतलब फिसाइल है। बाकी का 99.3% हिस्सा यूरेनियम 238 का होता है, जो आसानी से नहीं टूटता। तो रिएक्टर में क्या इस्तेमाल होता है? एक रिएक्टर को शांति से चलाने और उससे बिजली बनाने के लिए हमें इस यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाकर 3 से 5% तक लाना होता है। समझ गया। और बम के लिए? लेकिन एक बम बनाने के लिए जहां सारी की सारी ऊर्जा एक ही सेकंड के 1000वें हिस्से में चाहिए, वहां इसे 90% तक एनरिच करना पड़ता है। ओह, 90%। इसके लिए शायद वो गैस सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल होता है ना, जहां यूरेनियम को गैस में बदलकर बहुत तेज गति से घुमाया जाता है ताकि हल्का यूरेनियम 235 अलग हो सके। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो समस्या एनरिचमेंट की तकनीक से कहीं ज्यादा बुनियादी थी। हाँ, और यही वो जगह है जहां भारत की भौगोलिक मजबूरी सामने आती है। पूरी दुनिया जब यूरेनियम की खदानें ढूंढ रही थी और उसे एनरिच करने में लगी थी, तब भारत के पास दुनिया का सिर्फ 1 से 2% यूरेनियम मौजूद था। हाँ, जो कि बहुत ही कम है। तो आज़ादी के तुरंत बाद एक युवा देश जिसके पास अपनी आबादी को देने के लिए पर्याप्त बिजली तक नहीं थी, वो परमाणु महाशक्ति बनने की राह पर कैसे चल सकता था? ये एक बहुत बड़ा सवाल था उस वक्त। अगर हम थोरियम को अपनी उम्मीद माने तो यहाँ मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगा। ये थोरियम एक धक्का स्टार्ट BMW कार की तरह काम करता है। मतलब कार तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसका सेल्फ स्टार्ट खराब है। अरे वाह,
ये तुलना बहुत सटीक बैठती है। 1950 के दशक में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इस पूरी भौगोलिक चुनौती का गहराई से अध्ययन किया था। उन्होंने देखा कि यूरेनियम भले ही कम हो, लेकिन दुनिया का लगभग 25% थोरियम भारत में मौजूद है, विशेषकर केरल, ओडिशा और तमिलनाडु के समुद्री तटों की रेत में। अच्छा, वो जो मोनाजाइट रेत होती है? जी हाँ, मोनाजाइट के रूप में। डॉक्टर भाभा का विजन बहुत स्पष्ट था। उनका मानना था कि किसी भी सभ्यता के विकास और संप्रभुता के लिए ऊर्जा सुरक्षा सबसे अहम है। बिल्कुल। हम हमेशा यूरेनियम के लिए विदेशी ताकतों पर निर्भर नहीं रह सकते थे। तो अगर हमारी ये धक्का स्टार्ट कार यानी थोरियम अपने आप स्टार्ट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि डॉक्टर भाभा को एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना पड़ा होगा जहां पहले से मौजूद थोड़े से प्राकृतिक यूरेनियम को चाबी की तरह इस्तेमाल किया जा सके। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि इसे 3 स्टेज प्रोग्राम कहा जाता है, जहां हर चरण अगले चरण के लिए एक ईंधन पैदा करने वाली चाबी का काम करता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। समस्या की जड़ ये है कि थोरियम एक फर्टाइल मटेरियल है, फिसाइल नहीं। मतलब वो खुद नहीं जलता। हाँ, सरल शब्दों में ये यूरेनियम 235 की तरह सीधे तौर पर टूटकर ऊर्जा नहीं देता। थोरियम 232 पर जब न्यूट्रॉन टकराते हैं तो वो टूटता नहीं है, बल्कि उस न्यूट्रॉन को सोख लेता है। ओ, तो फिर रिएक्शन चर से होगी। इसीलिए डॉक्टर भाभा का त्रिचरणीय मास्टर प्लान कुछ इस तरह था। पहले चरण में हमारे पास मौजूद सीमित प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करके भारी पानी वाले रिएक्टर्स में बिजली बनाई जाए। ठीक है। और इस प्रक्रिया का एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, प्लूटोनियम 239। मतलब पहले चरण से हमें बिजली भी मिली और प्लूटोनियम भी मिल गया। हाँ, एकदम। फिर दूसरे चरण में उस प्लूटोनियम को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इस दूसरे चरण के रिएक्टर के चारों ओर थोरियम की एक परत या कह ले ब्लैंकेट लगाई जाती है। ब्लैंकेट। जब रिएक्टर चलेगा तो उससे निकलने वाले न्यूट्रॉन्स थोरियम से टकराएंगे और उसे एक नए तत्व यूरेनियम 233 में बदल देंगे। कमाल है। और फिर आता है तीसरा और अंतिम चरण, जहां इस यूरेनियम 233 और थोरियम का इस्तेमाल करके भारत सैकड़ों सालों तक बिना किसी बाहरी मदद के अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकता है। यार, ये सब कागज पर सुनने में बहुत शानदार लगता है, लेकिन इस पर एक गंभीर सवाल उठता है। बताइए। जो दूसरा चरण है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, अगर ये इतनी ही क्रांतिकारी तकनीक है तो दुनिया भर में ये फ्लॉप क्यों हो गई? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। मतलब अमेरिका ने 1966 में अपने फर्मी 1 रिएक्टर के मेल्टडाउन के बाद इससे हाथ खींच लिए। फ्रांस और जापान ने इस पे अरबों डॉलर लगाए और अंत में प्रोजेक्ट ही बंद कर दिए। हाँ, उनका काफी नुकसान हुआ था। तो क्या भारत 6 अप्रैल 2026 को कल पक्कम में क्रिटिकलिटी हासिल करके कोई अनावश्यक और खतरनाक जोखिम नहीं ले रहा है? ये डर बहुत स्वाभाविक है और इसके पीछे एक बहुत ठोस वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कारण है। अच्छा। पश्चिमी देशों के फेल होने का मुख्य कारण रिएक्टर की फिजिक्स नहीं थी, बल्कि उनकी इंजीनियरिंग थी। देखिए, एक सामान्य रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। हाँ, वो तो बेसिक है। लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में एक बड़ी समस्या है। पानी न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है और हमें थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलने के लिए तेज गति वाले यानी फास्ट न्यूट्रॉन चाहिए। तो फिर पानी तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। इसीलिए इन रिएक्टर्स में पानी की जगह लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल कूलेंट के रूप में किया जाता है। लिक्विड सोडियम। जहां तक मुझे याद है, सोडियम वही धातु है जो हवा या पानी के संपर्क में आते ही भयंकर आग पकड़ लेती है। हाँ, बिल्कुल वही। मतलब एक ऐसा रिएक्टर जिसके अंदर एक ऐसा तरल पदार्थ बह रहा है जो थोड़ी सी भी हवा या नमी मिलते ही विस्फोट कर सकता है। ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। बिल्कुल। और इसे संभालना दुनिया के सबसे जटिल इंजीनियरिंग कार्यों में से एक है। तो फिर इसे इस्तेमाल ही क्यों करना? क्योंकि लिक्विड सोडियम गर्मी को सोखने में पानी से कहीं ज्यादा सक्षम है और ये न्यूट्रॉन की गति को धीमा भी नहीं करता। इसलिए फास्ट रिएक्टर के लिए ये एकदम आदर्श है। लेकिन अमेरिका और जापान के रिएक्टर्स में यही हुआ। सोडियम लीक हुआ, आग लगी, दुर्घटनाएं हुई और उन्होंने डर कर प्रोजेक्ट बंद कर दिया। तो मतलब पश्चिमी देश इंजीनियरिंग में हार गए। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने क्या अलग किया? मैं बता रही हूँ ना, भारत ने दशकों का धैर्य दिखाया है इसमें। कलपक्कम में जो 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना है, जिसे भाविनी ने डिजाइन और निर्मित किया है, वो रातों रात नहीं बना है। हाँ, काफी समय लगा इसमें। इसके पीछे दशकों की मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च है। भारतीय वैज्ञानिकों ने सुरक्षा के ऐसे कई स्तर बनाए हैं जो सोडियम लीक होने की संभावना को लगभग शून्य कर देते हैं। वाह,
और इसीलिए 6 अप्रैल 2026 को जब इस रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल की तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था। क्रिटिकलिटी का मतलब ये हुआ ना कि रिएक्टर के अंदर चेन रिएक्शन अब अपने आप एक स्थिर और नियंत्रित तरीके से चलने लगी है। एकदम सही। और इस ब्रीडर रिएक्टर की सबसे जादुई बात यह है कि ये जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा ईंधन बनाता है। ये तो किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है। हाँ, लेकिन ये सच है। इसके कोर के बीच में ईंधन जलता है और कोर के बाहर यूरेनियम 238 का एक ब्लैंकेट होता है जो नए प्लूटोनियम में बदलता रहता है। भविष्य में इसी ब्लैंकेट में भारत अपना विशाल थोरियम का भंडार रखेगा। आज रूस के बाद भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कमर्शियल स्केल पर इस जटिल फास्ट ब्रीडर तकनीक को सफलतापूर्वक चला रहा है। ये सच में गर्व की बात है। लेकिन मुझे एक चीज हैरान करती है। ये एक तत्व का दूसरे में बदलना। हाँ, मतलब पीरियोडिक टेबल में थोरियम एक कदम आगे बढ़कर यूरेनियम कैसे बन जाता है? अक्सर केमिस्ट लैब में बैठकर रसायनों को मिलाते हैं, लेकिन यहां तो पूरा का पूरा तत्व ही बदल रहा है। ये कैसे होता है? इस रसायन विज्ञान के पीछे असल में न्यूट्रॉन की बारिश का कमाल है। अच्छा। इसे अगर बिना किसी भारी शब्दावली के समझें तो जब थोरियम 232 पर न्यूट्रॉन की बारिश होती है तो वो उस न्यूट्रॉन को अपने अंदर सोखकर भारी हो जाता है और थोरियम 233 बन जाता है। ठीक है, भारी हो गया। लेकिन ये अवस्था बहुत अस्थिर होती है और यहीं से बीटा डिके की प्रक्रिया शुरू होती है। बीटा डिके? ये कैसे काम करता है? देखिए, न्यूट्रॉन के अंदर एक संतुलन होता है। जब वो बहुत अस्थिर हो जाता है तो वो अपने भीतर से एक इलेक्ट्रॉन यानी एक नेगेटिव चार्ज को बाहर फेंक देता है। हाँ, नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया। अब सोचिए, जब एक न्यूट्रल चीज से नेगेटिव हिस्सा बाहर निकल जाएगा तो बचा हुआ हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। विज्ञान में पॉजिटिव चार्ज वाले कण को ही प्रोटॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में बदल जाना मतलब परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन बढ़ जाना। और पीरियोडिक टेबल तो पूरी तरह से प्रोटॉन की संख्या पर आधारित है। एग्जैक्टली। प्रोटॉन बढ़ा मतलब तत्व बदल गया। तो थोरियम पहले प्रोटैक्टिनियम 233 में बदलता है और फिर एक बार और बीटा डिके होकर अंततः यूरेनियम 233 बन जाता है। और यही यूरेनियम 233 भारत के 3 चरणीय कार्यक्रम के मतलब जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण तीसरा चरण है उसका मुख्य ईंधन है। जी हाँ, तीसरे चरण के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने एक विशेष रिएक्टर डिजाइन किया है जिसे एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर या AHWR कहते हैं बनाती है। पैसिव सेफ्टी। इसको अगर हम फुकुशिमा जैसी किसी बड़ी दुर्घटना के संदर्भ में देखें जहां पावर ग्रिड फेल हो गया था और रिएक्टर्स को ठंडा करने वाले पंप बंद हो गए थे, मेरा मतलब है कि क्या AHWR ऐसी स्थिति से निपट सकता है? बिल्कुल निपट सकता है। ये रिएक्टर विशेष रूप से ऐसी ही वर्स्ट केस स्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, कैसे? दुर्घटना की स्थिति में या पूरी तरह से बिजली गुल हो जाने पर भी इसे ठंडा करने के लिए किसी पंप या इंसानी दखल की जरूरत ही नहीं है। बिना पंप के ठंडा कैसे होगा? इसके ऊपर पानी का एक बहुत बड़ा टैंक होता है जिसे ग्रेविटी ड्रिवन वाटर पूल कहते हैं। मतलब ये गुरुत्वाकर्षण और प्राकृतिक कन्वेक्शन जैसे प्रकृति के बुनियादी नियमों का उपयोग करके खुद को ठंडा रखता है। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब गर्म पानी हल्का होकर ऊपर उठता है और ठंडा पानी गुरुत्वाकर्षण से नीचे आता है और ये चक्र अपने आप चलता रहता है। एकदम सही। ये बिना किसी बाहरी बिजली या ऑपरेटर की मदद के खुद को 7 दिनों तक सुरक्षित और ठंडा रख सकता है। वाह, 7 दिन तक। और इतना ही नहीं, ये अपनी बची हुई गर्मी जिसे हम वेस्ट हीट कहते हैं उसका इस्तेमाल करके समुद्र के खारे पानी को साफ पीने के पानी में भी बदल सकता है। मतलब डिसैलिनेशन। ये तो तटीय इलाकों के लिए एक बड़ा वरदान है। बिल्कुल, दोहरे फायदे हैं इसके। ये सब सुनकर तो लगता है कि भविष्य बस आ ही गया है और हमारी ऊर्जा समस्याएं खत्म होने वाली हैं। लेकिन चलिए थोड़ा जमीनी हकीकत का सामना करते हैं। हाँ, वो भी जरूरी है। योजनाएं, डिजाइन और वैज्ञानिक सफलताएं अपनी जगह हैं, लेकिन आज भारत की कुल स्थापित परमाणु क्षमता सिर्फ 8.78 गीगावाट के आसपास है। अभी क्षमता कम है। और सरकार का विजन 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करना है, यानी आने वाले कुछ ही दशकों में अपनी क्षमता को 12 गुना बढ़ाना। क्या ये लक्ष्य थोड़ा हवाई नहीं लगता? मतलब व्यवहारिक रूप से जमीन पर ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए, ये एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य है
और मैं मानती हूँ कि इसकी राह में चुनौतियां भी बहुत विशाल हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे पहली और बड़ी चुनौती है शुरुआती लागत यानी कैपिटल कॉस्ट। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में बहुत भारी निवेश और कई साल का समय लगता है। हाँ, वो तो है। फिर जमीन अधिग्रहण का एक बहुत पेचीदा मसला है। एक प्लांट के लिए उपयुक्त जगह ढूंढना, वहां के स्थानीय लोगों को समझाना और पर्यावरण मंजूरी लेने में कई बार 1 दशक से ज्यादा का समय लग जाता है। इसके अलावा पानी की कमी भी तो एक बड़ा मुद्दा है। मैंने पढ़ा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ठंडा रखने के लिए बहुत भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। बिल्कुल। गर्मियों में जब नदियों का जल स्तर कम हो जाता है या पानी पहले से ही गर्म होता है, तो रिएक्टर्स अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर पाते, जिसे शायद थर्मल थ्रॉटलिंग कहा जाता है। सही कहा आपने। और एक और बड़ा कारक है ग्लोबल सप्लाई चेन। अच्छा, वो कैसे प्रभावित करता है? हालांकि भारत स्वदेशी तकनीक पर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हम कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स और विदेशी डिजाइन वाले प्लांट्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन बाधित हुई, जिसका सीधा असर कुडनकुलम प्रोजेक्ट की समय सीमा पर पड़ा। इन सभी चुनौतियों से पार पाना कोई आसान काम नहीं है। शायद इन्हीं व्यावहारिक चुनौतियों को देखते हुए सरकार को अपनी नीतियों में बड़े बदलाव करने पड़े। स्रोतों में शांति अधिनियम 2025 का काफी जिक्र है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी और ये जमीनी स्तर पर क्या बदलाव लाएगा? असल में उस सबसे बड़ी कानूनी बाधा को दूर करने के लिए लाया गया जो विदेशी निवेश और प्राइवेट सेक्टर को भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम से दूर रखे हुए थी। कौन सी बाधा? वो बाधा थी सिविल लायबिलिटी। यानी अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? रिएक्टर चलाने वाली कंपनी या पुर्जे बनाने वाला सप्लायर? बिल्कुल वही पॉइंट। पहले के कानूनों में सप्लायर पर भी भारी लायबिलिटी होती थी, जिसके डर से कई विदेशी और घरेलू कंपनियां पुर्जे बनाने से कतराती थीं। तो नए कानून ने क्या किया? नए कानून ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से इस मुद्दे को सुलझाया है, जिससे प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के रास्ते खुले हैं। ये एक बड़ा कदम है। इसके अलावा वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए बजट 2025-26 में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs के डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ रुपए का विशाल आवंटन किया गया है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी ऐसे छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स जिन्हें किसी एक जगह ईंट द रीट बनाने के बजाय एक कारखाने या फैक्ट्री में मॉड्यूल के रूप में बनाया जा सके। एग्जैक्टली। और फिर ट्रकों में लाद कर सीधे साइट पर ले जाके जोड़ दिया जाए। इससे तो समय और लागत दोनों में भारी कमी आएगी। जी, SMRs भविष्य की एक बहुत बड़ी कुंजी है और इसके साथ ही सरकार न्यूक्लियर पार्क मॉडल पर भी काम कर रही है। ये पार्क मॉडल क्या है? इसमें सरकार किसी एक बड़ी जगह का चुनाव करती है, जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी जैसे सारे कानूनी काम पहले ही पूरे कर लेती है और फिर कंपनियों को प्लग एंड प्ले साइट सौंप देती है। तो मतलब कंपनियां आएं और सीधे काम शुरू करें। बिल्कुल, ताकि वे बिना किसी देरी के सीधे प्लांट बनाने का काम शुरू कर सके। और एक और महत्वपूर्ण पहलू जो स्रोतों में उभर कर आता है वो है न्यूक्लियर एनर्जी को ग्रीन टैक्सोनॉमी का हिस्सा बनाना। हाँ, ये बहुत जरूरी शिफ्ट है। इसका मतलब है कि अब परमाणु ऊर्जा को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोलर और विंड एनर्जी की तरह स्वच्छ और हरित ऊर्जा माना जाएगा, जिससे इसे बनाने के लिए सस्ता अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट फंड आसानी से मिल सकेगा। ये एक बहुत ही रणनीतिक कदम है। देखिए, पर्यावरण लक्ष्यों को पूरा करने और बेस लोड पावर सुनिश्चित करने के लिए केवल सौर या पवन ऊर्जा काफी नहीं है। बेस लोड पावर मतलब जो लगातार 24 घंटे मिले। जी, परमाणु ऊर्जा ही वह विकल्प है जो बिना कार्बन उत्सर्जन के लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा दे सकता है। इस पूरी चर्चा को अगर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक बात स्पष्ट होती है। वो क्या? ऊर्जा का मतलब सिर्फ किसी दीवार पर लगा स्विच दबाने से जलने वाली रोशनी नहीं है। ऊर्जा इस बात का बुनियादी पैमाना है कि कोई देश अपनी नीतियां बनाने में कितना आजाद है। बिल्कुल, 100% सहमत हूं मैं इस बात से। आज भारी मात्रा में कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च करने से आजादी मिलने का सीधा सा अर्थ है कि वो सारा पैसा सीधे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश किया जा सकता है। और कल्पक्कम में 6 अप्रैल 2026 की सफलता के साथ स्टेज 2 में प्रवेश करने का मतलब है कि भारत अब ऊर्जा आत्मनिर्भरता के उसी दरवाजे पर खड़ा है। हाँ, वो दरवाजा खुल रहा है अब। थोरियम के विशाल भंडार के रूप में प्रकृति ने भारत को वो चाबी दी है और अब विज्ञान ने उस चाबी को इस्तेमाल करने का ताला भी बना लिया है। सच में
ये पूरी यात्रा एक ऐसे मुकाम पर पहुंच रही है जो दुनिया के समीकरण बदल सकती है। अगर हम सोचें तो आज दुनिया की पूरी कूटनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य नीतियां मुख्य रूप से तेल और यूरेनियम के इर्द गिर्द ही बुनी गई हैं। सही कहा। तो जरा सोचने वाली बात है, जिस दिन भारत पूरी तरह से अपने थोरियम आधारित सुरक्षित रिएक्टर सिस्टम्स और तकनीक को छोटे एशियाई और अफ्रीकी देशों को निर्यात करना शुरू कर देगा जो आज ऊर्जा के लिए तरस रहे हैं, तो क्या वो दिन ग्लोबल पावर डायनामिक्स को हमेशा के लिए नहीं पलटकर रख देगा? ये एक अत्यंत गंभीर और दूरगामी विचार है। जो भारत कभी न्यूक्लियर तकनीक के लिए दुनिया के सामने पाबंदियां झेलता था, वो भविष्य में दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा की एक बिल्कुल नई और सुरक्षित तकनीक निर्यात करने वाला एक प्रमुख देश बन सकता है। मतलब ये ऊर्जा कूटनीति का एक नया युग होगा। बिल्कुल होगा। वाकई जिस तकनीक को बहुत खतरनाक और जटिल मानकर दुनिया के सबसे विकसित देशों ने अरबों डॉलर के नुकसान के बाद कूड़ेदान में डाल दिया था, भारत का ये धैर्यवान धक्का स्टार्ट प्रयोग आने वाले कल में दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली गाड़ी बन सकता है। हाँ, ये साबित हो रहा है। दिवाली के रॉकेट का ही उदाहरण ले लीजिए। खुला बारूद सिर्फ जलता है, लेकिन सही दिशा और सही दबाव में पैक किया गया बारूद गुरुत्वाकर्षण को भी मात दे सकता है। बहुत उम्दा बात कही आपने। भारत का परमाणु कार्यक्रम में कुछ ऐसा ही है। सीमित संसाधनों, असीमित धैर्य और सटीक विज्ञान का एक बेजोड़ संगम। इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। सोचने के लिए बहुत कुछ है। तो मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।